Good morning, dear students. Uh, as we have discussed about the management of preterm, now in your syllabus, next topic is feeding or infant feeding. Today we will start this new topic in your syllabus, that is infant feeding. And in infant feeding, first we will discuss today about breast milk. Then in next lecture we will discuss about the techniques and techniques of breastfeeding as well as complementary feeding, how to start complementary feeding, or various problems encountered during these breastfeeding as well as complementary feeding. So, infant feeding, basically, there are four main points regarding infant feeding. These are known as correct norms of infant feeding, and these four are first and foremost is timely initiation of breastfeeding. We should start breastfeeding as early as possible in a normal labor or normal delivery. We should start breastfeeding within half an hour of the delivery, and in cesarean sections we must start within 4 hours, but in new guidelines it is said that as early as possible we can start the breastfeeding. We should start it. So first and foremost is we have to start breastfeeding as early as possible, and then second point is we should continue this breastfeeding in the form of exclusive breastfeeding. Exclusive means we should not give anything else, no prelactials, no water, or nothing else should be given except of breast milk for first 6 months. The second point in infant feeding is exclusive breastfeeding for 6 months. Then third is weaning. Regarding weaning, after 6 months we should start with appropriate as well as adequate complementary feed. In addition to breast milk feeding, we should start a complementary feed which is adequate in frequency, in consistency, in quantity, and we should be appropriately chosen which type of complementary feed should be given, and it should be started after the completion of 6 months of the infancy, and in addition to breast feeding. Then the fourth main point is we should continue breastfeeding up to 2 years of life or beyond it. That we should not stop breastfeeding if there is no if there is no contraindication, or if there is feasibility of feeding breastfeeding, then we should continue it up to the 2 year of the age or beyond it, in addition to complementary feed. Now we will stress on breastfeeding, and breastfeeding as such is the most effective intervention to reduce infant mortality. There is no such measure which can reduce infant mortality to such an extent as done by exclusive breastfeeding. And this exclusive breastfeeding can prevent up to 13% of the deaths of the under 5 child, and it continue the intrauterine protection. The fetus is given some protections in uterine cavity, or there is immunological, nutritional, and there are so many protections given by the uterus to the fetus. This protection is continued by breastfeeding. Nature have given this mechanism to protect a human baby from various environmental or various nutritional problems by producing this milk in the mother's breast. इट इज़ स्पीसीज स्पेसिफिक, कि ऐसा नहीं है कि बकरी या गाय का दूध जो है माँ के दूध को सब्स्टिट्यूट कर सकता है. स्पीसीज स्पेसिफिक है. ह्यूमन मिल्क इज़ मेड फॉर ह्यूमन baby. It is not made for calf, and
Usually, the cow's milk is made for calf, not human bodies. That's why it is breastfeeding or breast milk is species specific, and there are multiple benefits of the breastfeeding to baby as well as mother, and we will discuss them one by one. These are the benefits, and in these benefits there are some nutritional benefits to the baby, there are immunological benefits, there are benefits for the development of CNS, as well as psychological benefits are there. These three we will discuss in coming slides. Then the other benefit is convenience as well as economical. So convenient, the breastfeeding is most convenient method of feeding to a बेबी. मदर को अगर कॉम्प्लीमेंट्री फीड कराना है शुरू से, अगर उसको ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करनी है, देयर में भी सो मैनी प्रॉब्लम्स. द मेथड्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग आर नॉट कन्वीनियंट इनफ, बिकॉज उसको रात को अगर फीड कराना है तो मदर को उठना है, नींद से उठना है, उसको जो फीड तैयार करना है उतने एसेप्टिक इन्वायरमेंट में तैयार करना है, बर्तन साफ़ करना है, बेबी को फीड कराना है, तो कन्वीनियंस की प्रॉब्लम्स रहती ही हैं. मदर जो है दिक्कत होगी उसको. बट ब्रेस्ट मिल्क ये सेप्टिक कंडीशन में मिलेगा बेबी को, मदर भी नींद में है या सोई हुई है या लेटी हुई है, तो उसको एक बहुत कन्वीनियंट तरीके से, साफ़ सुथरे तरीके से वो जो है दे सकती है. एंड इट इज़ इकोनॉमिकल. तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फीड्स हैं या जो बेबी फीड्स आते हैं, दे आर सो मच कॉस्टली. एंड इसमें जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है ब्रेस्ट फीडिंग में, इट इज़ ओनली द इंक्रीज्ड न्यूट्रिशनल नीड ऑफ लैक्टेटिंग मदर. बस उतना कर जो उसको एक्स्ट्रा कैलोरीज देनी है या न्यूट्रिशियस फूड देना है, वही जो है इसमें खर्चा है. जबकि इसके बेनिफिट्स मिलियंस ऑफ डॉलर्स में, अगर इंडियन इकोनॉमी में बात करें तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है कैन बी सेव्ड और आर बीइंग सेव्ड ओनली एंड ओनली बाय एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग. देन इट इज़ इकोलॉजिकल, इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है. अगर हम जो कॉम्प्लीमेंट्री फीड कर रहे हैं उसकी पैकेजिंग है या मेथड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फीड हैं, बॉटल फीड कर रहे हैं, प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, देयर आर सो मैनी प्रॉब्लम्स which can disturb our ecology, and breast milk is ecological. That's why long term we will discuss in coming slides, and maternal as well as. Then one by one we will discuss the beneficial effects of the breast milk. The first and foremost is its nutritional benefits. Breast milk is a whole food for a baby for first 6 months. It have optimal quantity of all the required macro as well as micronutrients. Butter, carbohydrates, protein, fat, micronutrients, they all are in sufficient quantity in breast milk so as to provide nutrition to the baby for first 6 months. It is easily digestible. Newborns have some problems of digesting fats. They are deficient in secretion of lipases, and breast milk provide a ready-made lipase. That's why the breast milk is easily digested, because it provides lipase. The fat available in the breast milk is easily digested by the help of these lipases. And second, the protein present in the breast milk is mainly of whey protein type. There are two type of milk proteins. One is casein and another is whey protein. In cow's milk, most of the protein, up to 80% of the protein is casein casein protein, and remaining is whey protein. However, in mother's milk, we will discuss in coming slides that whey protein is predominant, and whey protein is more easily digestible in comparison to casein. That's why protein in the mother's milk is easily digestible, and there is no need to supplement vitamins or iron if baby is on exclusive breastfeeding. However, there are some exceptions, but most of the time we do not require any supplementation during exclusive breastfeeding. And breastfeeding, this breast milk contains high quantity of lactose, which is useful for the healthy GIT. GIT में बहुत सारे functions ऐसे हैं जो
लैक्टोज करता है, जैसे चाहे इसका जो स्टमक का पीएच है उसको एसिडिक करने में जो है लैक्टोज हेल्पफुल होता है, जिसके कारण जो है स्टमक में हार्मफुल बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पाती है। एंड देयर आर सो मैनी जीआईटी बेनिफिट्स, एक एक करके हम जो अगर बात करेंगे तो बहुत सारे हैं। लैक्टोज की बात कर रहे हैं यहाँ, एचएमओ एक होता है, एचएमओ इज दिस ह्यूमन मिल्क ऑलिगोसैकेराइड्स, मेनली जो साइलिक एसिड है या कुछ और हैं जो कि हेल्पफुल होते हैं दिस बाइफिडस बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए, प्रोबायोटिक की तरह एक्ट करते हैं, और प्रोबायोटिक जीआईटी में जो है हार्मफुल बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं और बेनिफिशियल बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाते हैं। तो वो जो भी ब्रेस्ट मिल्क में कार्बोहाइड्रेट है, लैक्टोज है, चाहे वो एचएमओ है, वो उस इसमें हेल्प करते हैं। एंड सेकंड वन इज़ दे दे द लैक्टोज, और मेनली जब लैक्टोज टूटता है तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज बनता है। तो ग्लैक्टोज जो है वो ब्रेन की जो ग्रोथ है उसके लिए हेल्पफुल रहता है, सेरेब्रोसाइट्स की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होता है। देन इम्यूनोलॉजिकल बेनिफिट्स, तो इन इम्यूनोलॉजिकल बेनिफिट्स में जो रहता है वो आईजीए एंड आईजीएम, टू टाइप ऑफ दिस इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर नॉट ट्रांसफर टू द fetus थ्रू प्लेसेंटा। यूजली आईजीजी तो ट्रांसफ़र होती है, आईजीए आईजीएम नहीं होती। और आईजीए जो है बहुत हेल्पफुल है जीआईटी में, या कोई भी म्यूकोजल इम्यूनिटी बढ़ानी है, चाहे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस कम करता है कोलेस्ट्रम और ब्रेस्ट मिल्क, चाहे जीआईटी इन्फेक्शन कम करता है, उसके पीछे जो रहता है वो आईजीए रहता है। आईजीए जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बाइंड करके उनकी लाइसिस कराता है इंटेस्टाइन में, प्रिवेंशन करता है उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री से, तो म्यूकोजल इम्यूनिटी को बढ़ाता है, और इस कारण से जो बहुत सारी मोर्टिलिटी कम करने के पीछे आईजीए का हाथ रहता है। एंड सेलुलर एलिमेंट्स तो रहते ही हैं, जो कोलेस्ट्रम है उसमें सबसे ज़्यादा रहते हैं, जैसे पॉलीमॉर्फ्स हैं, या दिस मैक्रोफेजेस हैं, टी और बी लिफोसाइट्स हैं, ये सारे सेलुलर एलिमेंट जो है मिलियंस की कंसंट्रेशन में कोलेस्ट्रम में रहते हैं, और वो जो है लोकल इम्यूनिटी जीआईटी में प्रोवाइड कराते हैं। प्रोबायोटिक्स की बात हमने पहले ही कर ली कि जो एचएमओ है वो जो है प्रोबायोटिक की ग्रोथ में हेल्पफुल होता है, और जो बाइफिडस बैक्टीरिया है वो जो है ह्यूमन मिल्क में बहुत सारे टाइप के प्रोबायोटिक जो हैं रहते हैं। देन ऑप्सोनिक एंड कीमोटैक्टिक एक्टिविटी भी जो है इसमें रहती है, C3 C4 की जो हाँ, बीच में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई, उसके लिए सॉरी। वो मैं जो है एरोप्लेन मोड में डालना भूल गया था मोबाइल को, तो बीच में मैसेजेस आ रहे थे। तो हम आगे आ गए हैं इसमें। हम तो इस स्लाइड पे थे। तो हम बात कर रहे थे कि ऑप्सोनिक और कीमोटैक्टिक एक्टिविटी जो C3 C4 उनको एक्टिवेट करती है, वो भी जो है ह्यूमन मिल्क में मिलती है, जो कि नॉन स्पेसिफिक जो है इम्यूनिटी है उसको उसको जो है प्रोवाइड कराती है। तो बहुत सारे नॉन सेलुलर एलिमेंट्स भी ह्यूमन मिल्क में होते हैं जो कि इम्यूनोलॉजिकली एक्टिव होते हैं, जैसे लैक्टोफेरिन है, लाइसोजाइम है। ओलिगोसैकेराइड्स की हमने बात कर ली कि वो जो एचएमओ हैं, ह्यूमन मिल्क ओलिगोसैकेराइड्स हैं, वो बाइफिडस बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होते हैं। जहाँ तक लैक्टोफेरिन और लाइसोजाइम का संबंध है, तो वो जो है वो नॉन सेलुलर एलिमेंट्स हैं, वो जो है नॉन स्पेसिफिक ह्यूमोरल फैक्टर्स की तरह काम करते हैं। बहुत सारे एंटीवायरल और एंटी स्टेफाइलोकोकल एजेंट्स भी जो है ह्यूमन मिल्क में मिलते हैं, जो कि वायरल और स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करते हैं। और इन सारी चीज़ें जो इम्यूनोलॉजिकली एलिमेंट्स हैं, इनकी प्रेजेंस होने के कारण जो है ब्रेस्ट मिल्क पे जो बच्चे हैं दे हैव रिड्यूस्ड चांसेस ऑफ डायरिया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड अदर इन्फेक्शंस भी जो है उनमें कम देखे गए हैं।
देन CNS बेनिफिट्स की बात करें तो यूजुअली ब्रेस्ट मिल्क फैट जो एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फैट बेबीज़ हैं दे आर हैविंग बेटर IQ। देखा गया कुछ स्टडीज़ में कि देयर IQ इज़ अप टू 8 पॉइंट हायर देन नॉन ब्रेस्ट फैट बेबीज़, and this is due to mainly due to high concentration of DHA। DHA is डिकोसा एसिड जो सब जानते हैं, एंड आर्चिडोनिक एसिड। तो ये दो जो है स्पेसिफिक टाइप के जो है फैटी एसिड्स उसमें रहते हैं, ब्रेस्ट मिल्क में रहते हैं, जो कि बेटर IQ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और एज सच लैक्टोज और साइलिक एसिड हमने बात करी, साइलिक एसिड ओलिगोसैकेराइड है और लैक्टोज जो है ग्लैक्टोज बनाता है। तो जो सेरेब्रोसाइड और गैंग्लियोसाइड्स की ग्रोथ या गैंग्लियोसाइड की फॉर्मेशन के लिए जो है ज़रूरी रहते हैं। और प्रोटीन में जो है सिस्टीन और टॉरिन ह्यूमन मिल्क में कंपेरेटिवली बाकी मिल्क से ज़्यादा रहती है, जो कि डायरेक्टली जो है न्यूरोट्रांसमीटर बनाने में हेल्प करती है, न्यूरोट्रांसमीटर की तरह एक्ट भी करती हैं। तो ये तीनों चीज़ें, फ़ैट हो चाहे कार्बोहाइड्रेट हो चाहे प्रोटीन है, वो तीनों ही चीज़ें जो हैं उनमें कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि ह्यूमन ब्रेन की ग्रोथ के लिए जो है असेंशियल हैं। और इन्हीं कारण से जो है ह्यूमन ब्रेन जो है ज़्यादा होता है, और विजुअल जो डेवलपमेंट है उसको भी एनहांस जो है ब्रेस्ट फीडिंग करता है, ये देखा गया है। देन साइकोलॉजिकल सब जानते हैं कि व्हेन बेबी इज़ एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड, तो उसको जो है खाना और माँ दोनों इकट्ठे मिल जाएं तो और क्या चाहिए। तो फूड एंड मदर एट द सेम टाइम जो है मिलते हैं उसको ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान। तो मैटरनल वार्मथ है, क्लोजनेस है, इमोशनल सिक्योरिटी है, ये सारी चीज़ें उसको ब्रेस्ट फीडिंग से मिलती है। दिस फीडिंग जो है वो इट आल्सो स्टिमुलेट ऑल द फाइव सेंसेस, उनकी डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल है। और लॉन्ग टर्म अगर बात करें तो जो एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फेड बेबीज़ हैं दे आर हैविंग लेस इंसिडेंस ऑफ एस्थमा एज वेल एज एक्जिमा। लॉन्ग टर्म में जो है उनको एस्थमा और एक्जिमा, एलर्जीज़, बेसिकली एलर्जीज़ को जो है प्रिवेंट करता है। अगर ब्रेस्ट फीड नहीं किया है, काउज मिल्क पे डाला है, तो यूजुअली जो है जो प्राइमिंग है GIT की वो नहीं हो पाती है। लार्ज मॉलिक्यूल जो एंटर करते हैं GIT से क्रॉस करते हैं, तो वो जो है लॉन्ग टर्म में एलर्जीज़ ऐसे बच्चों में ज़्यादा देखी जाती है जो ब्रेस्ट फीडिंग पे ज़्यादा नहीं रहे हैं, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे नहीं रहे हैं, और अर्ली इंट्रोडक्शन ऑफ अदर सब्सटेंसेस हुआ है तो उनमें जो एलर्जीज़ ज़्यादा होती हैं। तो इसलिए एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड बेबी में चांसेस ऑफ एस्थमा एंड एक्जिमा आर वेरी लो। इसी तरीके से कुछ और बेनिफिट्स देखे गए हैं कि ऐसे बच्चों में डेंटल कैरीज, ओबेसिटी, दोनों टाइप के डायबिटीज़ है, यहाँ टाइप 2 लिखा है बट दोनों टाइप की डायबिटीज़, मेलाइटिस, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक और कुछ कैंसर्स से भी जो है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बचाता है। उन बेबीज़ में इन चीज़ों के रिस्क जो है कम पाया गया। Then breastfeeding is not only beneficial for the baby, it is also beneficial for the mother as well। और मदर को क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं वो यहाँ हमने बात करनी है कि इट प्रमोट्स इन्वोल्यूशन, देर इज़ लेस ब्लीडिंग एंड एनीमिया। इन्वोल्यूशन कैसे प्रमोट करता है? ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान जब सकिंग करता है बेबी, एक ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स होता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। जितना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा वो जो है यूट्राइन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराता रहेगा और उससे ब्लीडिंग के चांसेस भी कम होंगे, एनीमिया भी कम होगा। और इन्वोल्यूशन, जो यूट्राइन इन्वोल्यूशन है, जो यूट्रस जो एब्डोमिनल स्ट्रक्चर हो गया प्रेगनेंसी के दौरान उसका फिर से जो है पेल्विक स्ट्रक्चर बनना, दैट इज़ इन्वोल्यूशन। तो उसको उसमें भी हेल्पफुल रहती है ब्रेस्ट फीडिंग। जितनी ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे ऑक्सीटोसिन ज़्यादा सिक्रेट होगा और इन्वोल्यूशन होगी। फ्री कॉन्ट्रासेप्शन मेथड है, हाउएवर इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, बट देखा गया है कि इंडिया में ऐसा कोई भी टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है। परमानेंट तो हम जानते हैं कि टिवैक्टोमी है, वैसेक्टोमी है, वो परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, बट कोई भी ऐसा टेम्परेरी मेथड नहीं है जो ब्रेस्ट फीडिंग से ज़्यादा प्रेगनेंसीज प्रिवेंट करता हो। तो ब्रेस्ट फीडिंग इज़ द मोस्ट कॉमनेस्ट और मोस्ट जो जिसको बोलेंगे सबसे जो सबसे बड़ा है।
कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स है कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं, प्रोलैक्टिन सिक्रेट हो रहा है और प्रोलैक्टिन जो है ओव्यूलेशन नहीं होने देता है। तो ओव्यूलेशन नहीं होगी तो कॉन्ट्रासेप्शन काम करेगा। तीसरी जो चीज़ है, यूजली सम मदर्स से दैट ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे तो हमारा फिगर ख़राब हो जाएगा, ब्रेस्ट लूज हो जाएंगे। देयर आर सो मैनी मिसकंसेप्शंस, बट अगर ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तो प्री प्रेगनेंसी फिगर को प्रमोट करता है, बिकॉज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देर इज़ एक्सेसिव लेइंग ऑफ दिस फैट in various tissues of the pregnant lady, and this fat is basically deposited to meet the calorific needs during lactation। और अगर आप लैक्टेशन नहीं कराएंगे तो फैट ऐसा सच रह जाएगा और फिगर डिसफिगरमेंट तब होगी जब जब ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराएंगे। अगर ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे तो फैट जो है मोबिलाइज होगा और मिल्क के थ्रू सिक्रेट होगा, या एनर्जी जो रिक्वायरमेंट बढ़ेगी लैक्टेशन की उसमें जो यूटिलाइज होगा, और जो है आपका प्री प्रेगनेंसी फिगर जो है मेंटेन होगा, प्रमोट होगा। देन इसके अलावा भी कुछ और बेनिफिट्स हैं, जैसे जो मदर्स ब्रेस्ट फीड कराते हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर एज वेल एज ओवेरियन कैंसर के चांसेस रिड्यूस होते हैं। साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं। साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स में जब मदर कराती है तो उसको लगता है कि मैं अपने बच्चे की केयर कर रही हूँ, इमोशनली अटैच्ड होती है, और जब कराती है तो अपने को एक जो इम्पोर्टेंट अंग भी समझती है फैमिली का, उसको स्पेशल साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स उन चीज़ों के होते हैं। और फिजिकल और इकोनॉमिकल बेनिफिट्स भी हैं। फिजिकल तो हमने बात कर ली ऊपर, इकोनॉमिकल हमने पीछे बात करी कि बहुत सारे जो इकोनॉमिकल वर्डन कम करता है। देन उसके बाद बात करते हैं ब्रेस्ट मिल्क की कंपोजिशन की। तो यूजुअली जो अप्रोक्सीमेटली जो वॉल्यूम है वो अप्रोक्सीमेटली 800 ml पर डे सिक्रेट होता है। It have both nutritive as well as non-nutritive factors, बायोएक्टिव फैक्टर्स जैसे कुछ तो न्यूट्रिशन के लिए हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स है, ये हैं वो हैं, बट सम आर एंटी इन्फेक्टिव फैक्टर्स जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं। दे आर नॉट न्यूट्रिटिव बट दे आर प्रोटेक्टिव। तो प्रोटेक्टिव फैक्टर्स जो हैं कुछ रहते हैं इसमें। इसमें वो सारी चीज़ें हैं, मेटाबॉलिक फ्यूल्स हैं जो कि ऑप्टिमम ग्रोथ फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स जो है बेबी के लिए होनी चाहिए, वो ऑप्टिमम क्वांटिटी में है। यूजली जो एनर्जी है 65 किलो कैलोरी पर डेसीलीटर, या 65 to 70, आर्बिट्री ह्यूमन में तो हम रेंज ही देते हैं, तो 65-67 के आसपास जो एनर्जी पर 100 ml जो है इसमें रहती है। देन जो वाटर कंटेंट है 87 to 90% ऑफ द मिल्क इज़ हैविंग वाटर। देन फैट इज़ अराउंड 3.5 ग्राम्स पर डेसीलीटर। फैट भी जो है यूनिफॉर्म नहीं रहता है, एवरेज है। हाइंड मिल्क में लगभग इतना रहता है, फोर मिल्क में कम होता है। तो इसमें भी जो जो फैट में 98% जो है ट्राइग्लिसराइड होते हैं, और ओमेगा 3 ओमेगा 6 जो एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं वो रहते हैं, और बूफा पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं कुछ परसेंट जो हैं वो बाकी के रहते हैं। तो वो सब जो है ज़रूरी रहते हैं ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। जैसे हमने बात की थी डीएचए की या आर्चिडोनिक एसिड की, वो चीज़ें जो है इसमें फैट में रहती हैं, और इस फैट में जो है फैट सॉल्युबल विटामिन्स को कैरी करने की भी क्षमता रहती है। देन कम्स प्रोटीन। तो प्रोटीन में हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो प्रोटीन जो है यूजुअली आगे हम कंपेयर भी करेंगे कि प्रोटीन की क्वांटिटी कम रहती है जो जो कैटल्स का मिल्क है, जो हमारा एनिमल्स का जो काऊ का है या बफेलो का है या और किसी का है, तो उसमें प्रोटीन हाई रहता है। जबकि ह्यूमन मिल्क में प्रोटीन जो 1.1 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, जिसमें कि वे प्रोटीन 60% तक रहती है, जबकि केसिन वर्ने 40% जो कि काउ मिल्क में ज़्यादा रहती है। तो इसलिए वे प्रोटीन ज़्यादा होने के कारण डाइजेस्टिव सॉफ्ट कर्ड बनाते हैं। और जो वे प्रोटीन के कंपोनेंट्स हैं उसमें लैक्टोएल्बुमिन, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, लैक्टोफेरिन, ये सारे जो है रहते हैं जो कि हमारे को इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं। देन कम्स लैक्टोज। तो लैक्टोज जो है, लैक्टोज इज मिल्क कार्बोहाइड्रेट जो बोलेंगे हम, मिल्क में जो कार्बोहाइड्रेट रहता है वो
लैक्टोज है और एक चीफ जो है प्रिंसिपल कार्बोहाइड्रेट है। इसके अलावा HMO हम बात कर रहे थे, ह्यूमन मिल्क ऑलिगोसैकराइड्स रहते हैं। तो 7 ग्राम के आसपास जो है लैक्टोज रहता है। और बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात है तो कैल्शियम 35 मिलीग्राम, विटामिन ए 75, विटामिन B1 14, B2 40, सम अदर बायो एक्टिव फैक्टर जिनकी हमने पीछे बात की थी प्रोटेक्टिव हैं। प्रोटेक्टिव के अलावा जो है डाइजेस्टेंट्स हैं, जैसे एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, साइटोकाइंस हैं। तो हर एक तरीके के बायो एक्टिव फैक्टर जो कि न्यूट्रिटिव नहीं है बट ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट हैं या डाइजेशन के लिए या इम्यूनिटी के लिए हैं, वो भी जो है ह्यूमन मिल्क में रहते हैं। तो दिस इज़ कंपेरेटिव कंपोजिशन, जहाँ की हम बात करेंगे कि पानी लगभग वाटर लगभग बराबर है, बट प्रोटीन देखेंगे तो 1.1 ग्राम्स और वहाँ काउस मिल्क में 3.5 ग्राम्स। तो काउस मिल्क में प्रोटीन हाई होती है क्योंकि जो काऊ का बछड़ा है, काफ है, उसको जो है एक साल में कितने 10 गुना वेट गेन करना है, और जबकि हमारे बेबी को कितना करना है, लगभग 3 गुना जो है वेट गेन करना है। तो उसके लिए जो है उसकी बिल्ड के लिए वो काउज मिल्क इज़ मेड फॉर काफ, नॉट ह्यूमन बेबीज़। तो उसमें प्रोटीन हाई रहता है और वो प्रोटीन जो है डाइजेस्ट करने में भी प्रॉब्लम होता है। जैसे हम देख रहे हैं कि केसिन अप टू 80% जो है इसमें रहता है, जबकि ह्यूमन मिल्क में 40% रहता है। तो डाइजेस्टिंग जो कैपेबिलिटीज़ है या जो डाइजेशन में प्रॉब्लम है वो काउस मिल्क में ज़्यादा है, क्योंकि केसिन डाइजेस्ट करने में टफ होता है। बाकी जो ह्यूमन मिल्क में वे प्रोटीन ज़्यादा रहता है, लैक्टोल्यूमिन, और वे प्रोटीन जो है हाई रहती है। और कुछ न्यूरोट्रांसमीटर के लिए जो अमीनो एसिड्स नेसेसरी है उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा रहती है बाकी मिल्क से, जैसे सिस्टीन या टॉरिन है। जबकि काउस मिल्क में जो है लैक्टोग्लोबुलिन ज़्यादा रहता है, लैक्टोल्यूमिन की बजाय लैक्टोग्लोबुलिन ज़्यादा रहता है। और कुछ जो अमीनो एसिड्स ह्यूमन मिल्क से ज़्यादा पाए जाते हैं या मोर कंसंट्रेशन होती है उनमें, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एनिलिन जो है ये रहते हैं। फैट लगभग बराबर है, थोड़ा सा ही काउस मिल्क में ज़्यादा रहता है, बफेलो मिल्क में और भी ज़्यादा रहता है। बट मेन है जो फैट में कंटेंट्स हैं, DHA जो है ह्यूमन मिल्क में ही मिलता है, क्योंकि ह्यूमंस आर हैविंग हाई IQ और ब्रेन ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, जबकि वो काउज मिल्क में नहीं मिलेगा। और काउज मिल्क की डाइजेस्टिबिलिटी भी पुअर है क्योंकि वहाँ लाइपेजेस नहीं है, जबकि ह्यूमन मिल्क में लाइपेजेस हैं, लिनोलिक एसिड है, तो इसलिए इजीली डाइजेस्टिबल है। लैक्टोज तो बात हो गई है। और सॉल्यूट लोड भी देखेंगे तो सॉल्यूट लोड बहुत ज़्यादा है काउज मिल्क का, लगभग 3 गुना 3.5 गुना दिखा रहा है कि 0.2 ग्राम्स है ह्यूमन मिल्क का पर 100 ml, और यहाँ काउज मिल्क का 0.7 है जो ऐश वैल्यू है। और सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम जिस क्लोराइड की कंसंट्रेशन बताइए जो कि ह्यूमन मिल्क में जो रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से। सॉल्यूट लोड जो ऑस्मोलैलिटी है वो भी जो है कम है, ह्यूमन मिल्क की 290 है, तो एक्सक्रीट आउट करने में भी प्रॉब्लम नहीं है। और कैल्शियम फास्फोरस की जो रेशो है वो बहुत बढ़िया है, 2.2 या 2.5 के आसपास की रेशो जो है वो एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी है और टिटेनी होने प्रिवेंट करने के लिए ज़रूरी है, जबकि काउज मिल्क में वो प्रोपोर्शन नहीं है। फास्फोरस जो है कैल्शियम से कहीं मतलब 2.2 का रेशो नहीं है, जो कि मिनिमम रिक्वायर्ड होता है कैल्शियम फास्फोरस में उनके नॉर्मल उसके लिए, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के लिए। उसके बाद हिमेटेनिक फैक्टर्स की बात करें तो ऑलमोस्ट हर एक चीज़ जो है ह्यूमन मिल्क में काउज मिल्क से ज़्यादा है। सिर्फ एक दो जगह अंतर है कि विटामिन के काउज मिल्क में ज़्यादा होता है और थोड़ा सा विटामिन ए भी काउज मिल्क में ज़्यादा होता है। तो इस कारण से जो डिजीज़ की बात लिखी है, डिजीज़ लिखी है नीचे, तो ह्यूमन मिल्क से जो रिलेटेड डिजीज़ हैं यूजुअली जो है हेमरेजिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न, HDN क्या है, हेमरेजिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न। वो क्यों? क्योंकि विटामिन के जो है ह्यूमन मिल्क में कम मिलता है जबकि काउज मिल्क में वो ज़्यादा मिलता है। तो एक ही बीमारी है जो हो सकती है, ज़रूरी नहीं है सबको होती है, कि चांसेस हैं उसमें, इसीलिए विटामिन के लगभग सभी बेबीज़ को अब लगाया जाता है बर्थ के टाइम। सेकंड जो है ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस, तो नाम ही ब्रेस्ट मिल्क है, तो ब्रेस्ट मिल्क के कारण नहीं होगी, सभी में नहीं होती है, बहुत रेयरली होती है भी। रिकेट्स है क्योंकि कैल्शियम की कंसंट्रेशन कम है, तो रिकेट्स के लिए जो है पहले नेचर में क्या होता था कि
अब हम जो है घरों में रहते हैं या बिल्कुल प्रोटेक्ट करके रखते हैं बेबीज़ पहले, या गांव में भी जाओगे तो बाहर धूप लगा रहे हैं तो रिकेट्स के चांसेस विटामिन डी कम होने के कारण जो है बहुत कम रहते हैं। और ट्रांसमिशन ऑफ वायरल इन्फेक्शन, अगर मदर इन्फेक्टेड है किसी वायरल इन्फेक्शन के लिए, तो हो सकता है वो ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू ट्रांसफ़र हो सकता है। जबकि काउज मिल्क पे अगर बेबी है तो उसमें टिटेनी, जैसे हमने पहले बात करी थी कि फॉस्फोरस ज़्यादा होने के कारण जो टिटेनी हो सकती है ऐसे बच्चों में। सोल्यूट लोड ज़्यादा है, एश वैल्यू ज़्यादा है, ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा है, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस के चांसेस हाई हैं। जैसे कि हमने प्री टर्म्स में बात करी थी, किडनी जो है के कारण लेट मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकती है। मिल्क एलर्जीज़ की हमने बात करी कि हाई प्रोटीन जो है रहती हैं, और वो प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है मुकोसा को क्रॉस करके एलर्जीज़ पैदा कर सकते हैं। आईडीएज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो हेमेटेनिक फैक्टर कम है, आयरन कम है, तो और इवन जो है उसकी एसिमिलेशन एब्जॉर्प्शन कम होती है, इसलिए जो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। ADE is this acrodermatitis enteropathica. Usually it is due to जिंक डेफिशिएंसी, जिंक नहीं होता है काउज मिल्क में, उस कारण से होता है। कैरीज देखी गई है जो काउज मिल्क में डालते हैं, या जो शुरू से काउज मिल्क ले रहे हैं बच्चे, उनमें डेंटल कैरीज, ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, लिम्फोमाइन के इंसिडेंसेस ब्रेस्ट फेड बेबी से कहीं ज़्यादा रहते हैं। कैलोरीज लगभग सेम है। देन कम्स टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। तो ब्रेस्ट मिल्क जो है अलग अलग स्टेजेस में, अलग अलग तरीके से, अलग अलग कंपोजिशन के साथ, अलग अलग पर्पजेज़ को सॉल्व करने के लिए सिक्रेट होता है। सबसे शुरू में कोलेस्ट्रम होता है, फिर 2 हफ्ते, उसके 2 हफ्ते मतलब पहले के 4-5 दिन कोलेस्ट्रम रहेगा, उसके बाद अगले 2 हफ्तों के लिए ट्रांजिशनल मिल्क रहेगा, फिर मैच्योर मिल्क आएगा, फिर इन्वोल्यूशन मिल्क आएगा। तो इनकी सबकी हम बात करेंगे। तो कोलेस्ट्रम जो है फर्स्ट 5 डेज या 3 to 5 डेज सिक्रेट होता है, कम क्वांटिटी में होता है, थिक होता है, स्टिकी होता है, बट इट इज़ वेरी रिच इन प्रोटीन, विटामिन ए, के एंड सोडियम। और प्रोटीन्स में भी जो है इम्यूनोग्लोबुलिन्स, लैक्टोफेरिन बहुत हाई क्वांटिटी में इसमें रहते हैं। इट इज़ लो इन फैट, लैक्टोज एज वेल एज विटामिन B1। ग्रोथ फैक्टर GIT मैच्योरेशन के लिए जो है इसमें रहते हैं। और एक चीज़ इसमें नहीं लिखी गई है कि इसमें सेलुलर एलिमेंट्स भी बहुत हाई रहते हैं। तो कोलेस्ट्रम जो IgA की बात करें तो IgA अगर किसी बॉडी फ्लूइड में हाईएस्ट रहता है तो वो कोलेस्ट्रम है। कोलेस्ट्रम इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ दिस IgA इम्यूनोग्लोबुलिन्स। और वैसे ही सेलुलर एलिमेंट्स कोलेस्ट्रम में सबसे ज़्यादा रहते हैं, जो पॉलीमॉर्फ्स हैं, जो इनिशियल इम्यूनिटी हमको जो है प्रोवाइड करते हैं, या जिसको बोलते हैं फर्स्ट शॉट ऑफ वैक्सीन, जो है कोलेस्ट्रम है ना। कोलेस्ट्रम जो है वैक्सीनेशन की तरह काम करेगा, आपको जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड कराएगा। देन कम्स ट्रांजिशनल मिल्क। तो कोलेस्ट्रम के बाद जो जब तक मैच्योर मिल्क नहीं आता है तब तक जो बीच में ट्रांजिशन होता है, कोलेस्ट्रम से मैच्योर मिल्क के बीच का ट्रांजिशन है, इसलिए इसको ट्रांजिशनल मिल्क बोलते हैं। और 2 हफ्ते तक जो है लगभग सिक्रेट होता है। इसमें ग्रेजुअल चेंज होता है कंपोजिशन में, और इम्यूनोग्लोबुलिन और प्रोटीन्स डिक्रीज होती है, और फैट शुगर जो कोलेस्ट्रॉल में कम था वो इंक्रीज होने लगता है। देन कम्स मैच्योर मिल्क। मैच्योर मिल्क जो है क्वांटिटी बढ़ जाती है कोलेस्ट्रम, और इसकी जो ट्रांजिशनल मिल्क से क्वांटिटी ज़्यादा होती है, इसकी ग्रेटर वॉल्यूम है, फैट लैक्टोज इंक्रीज होता है, IgA रिड्यूस हो जाती है। ये 2 तरह से होता है, फोर मिल्क और हाइंड मिल्क। तो फोर मिल्क बेसिकली जो जब ब्रेस्ट फीडिंग कराना शुरू करते हैं तो इनिशियली जो आता है वो फोर मिल्क होता है। इसमें सारी चीज़ें रहती हैं, और ये बेसिकली थर्स्ट को शांत करता है बेबी के। तो इसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, और एक ही चीज़ जो हाइंड मिल्क से कम होती है इसमें, या वो है फैट। तो मेनली जो फोर मिल्क थर्स्ट के लिए है, वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, फैट कंटेंट कम होता है। जबकि हाइंड मिल्क जो मतलब ब्रेस्ट के लास्ट में फीडिंग करते करते जब ब्रेस्ट पूरी तरह से खाली हो रही है, तो तब जो सिक्रेट होता है वो जो है हाइंड मिल्क होता है। और हाइंड मिल्क में जो है फैट ज़्यादा रहता है, और वो बेसिकली सैटिटी कराता है बच्चे को, जो है सेटिस्फेक्शन देता है, सैटिटी देता है, भूख को शांत करता है। देन कम्स इन्वोल्यूशन मिल्क। और इन्वोल्यूशनल मिल्क वो है जब लैक्टेशन ख़त्म हो रही है, 2 साल में, 3 साल में मदर के ब्रेस्ट में दूध नहीं आ रहा, तो उस टाइम जो मिल्क आता है उसको इन्वोल्यूशनल मिल्क बोलते हैं। और इसमें जो है लैक्टोज कम रहता है, जबकि प्रोटीन और फैट हाई रहते हैं। देन कम्स प्रीटर्म मिल्क। तो जो बात कर रहे थे हम कि स्पीसीज स्पेसिफिक होता है मिल्क, तो मिल्क इज़ आल्सो
बेबी स्पेसिफिक, टर्म बेबी है तो उसकी मदर का मिल्क की क्वालिटी अलग होगी, प्री टर्म है तो उसकी क्वालिटी अलग होगी। तो प्री टर्म्स में प्रोटीन ज़्यादा रहती है, मिनरल्स ज़्यादा रहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन ज़्यादा होती हैं, लैक्टोफेरिन ज़्यादा होती हैं, लाइसोजाइम और सेल्स की क्वांटिटी भी ज़्यादा होती हैं। देन कम्स मिल्क प्रोडक्शन, तो हम ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाएंगे। बेसिकली मिल्क प्रोडक्शन के पीछे जो है प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स होता है, और प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स जो है कैसे होता है, जब बेबी सक्कल करता है, जब बेबी ब्रेस्ट पे लगता है, तो वहाँ से जो है ये ब्रेस्ट की स्ट्रक्चर है, ये सब लोग जानते हैं। तो ये प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स है, तो इसमें हम जो है बेसिकली प्रोलैक्टिन कहाँ से सिक्रेट होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है। और मेन स्टिमुलेशन इज सक्लिंग ऑफ बेबी, जैसे बेबी ब्रेस्ट को सक्ल करता है तो वहाँ से स्टिमुलस जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी में, जहाँ से प्रोलैक्टिन सिक्रेट होता है। बट जो ये रिफ्लेक्स है, अभी बेबी सक कर रहा है तो अभी के अभी प्रोडक्शन के लिए प्रोलैक्टिन सिक्रेट नहीं होगा। अभी जितना बेबी सक करेगा उतना जो है अगली बार के लिए प्रोलैक्टिन सिक्रेट होगा, जो कि अगली बार जो बेबी फीड करेगा उसके लिए मिल्क प्रोड्यूस करेगा। तो मतलब अगले साइकिल के लिए जो ब्रेस्ट फिल होगी मिल्क से, उसके लिए जो है इस बार की सकिंग जो है रिफ्लेक्स प्रोड्यूस करेगी। मोर सकलिंग मोर मिल्क प्रोडक्शन, लिखा भी है सिक्रेटेड आफ्टर फीड टू प्रोड्यूस नेक्स्ट फीड। तो प्रोलैक्टिन तुरंत जो है रियल टाइम सिक्रेट नहीं होता कि ब्रेस्ट पे सक कर रहा है बेबी और जो है प्रोलैक्टिन एंटी पिट्यूटरी से सिक्रेट हो रहा है। वो जितना स्टिमुलस देगा उस हिसाब से एंटी पिट्यूटरी अगली बार की फीड तैयार करने के लिए बाद में प्रोलैक्टिन सिक्रेट करती है। और दिस प्रोलैक्टिन आल्सो सप्रेसेस ओव्यूलेशन, हमने पहले बात कर ली। दिस इज रिफ्लेक्स कि बेबी सक कर रहा है, सेंसरी इम्पल्सिस फ्रॉम निपल जा रही है एंटीरियर पिट्यूटरी, जहाँ से प्रोलैक्टिन ब्लड में आ रहा है और वो जो है ब्रेस्ट में मिल्क प्रोड्यूस करवा रहा है। देन रिलीज कैसे होता है, मिल्क फ्लो कैसे होता है, वो है ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स, और ऑक्सीटोसिन सिक्रेट होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। और इसमें क्या रहता है कि ये जो है रियल टाइम रहता है कि जब सक किया है या जब जो है ऑक्सीटोसिन सिक्रेट हुआ तभी जो है मिल्क प्रोड्यूस होगा। तो मतलब रियल टाइम में जब सकिंग हो रही है तभी जो है ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होता है। तो इसमें मेन स्टिमुलेशन सकलिंग है, बट अदर पॉजिटिव स्टिमुलस आर द साइट, साउंड, टच ऑफ द बेबी और even thought of the baby can also stimulate the oxytocin रिफ्लेक्स। कि जो है दूध आने लगता है, जैसे माँ सोचती है अपने बच्चे के बारे में, उसका बच्चा चूस नहीं रहा है, ब्रेस्ट सकलिंग नहीं कर रहा है दूसरे कमरे में, या मदर ऑफिस में, बेबी घर में है और उसको ध्यान आता है अपने बेबी का, तो उसकी ब्रेस्ट में से दूध जो है टपकने लगता है, वो ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स है। द थॉट ऑफ द बेबी कैन इवन कॉज ऑक्सीटोसिन रिलीज एंड दैट मे रिलीज द ब्रेस्ट मिल्क। क्लास लंबी हो रही है तो नहीं, तो एक जो है गीता में भी या महाभारत में भी आप जाएंगे तो वहाँ पे भी ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स का वर्णन है कि जब कृष्ण जी शंखनाद करते हैं या जब शंख बजाते हैं कुरुक्षेत्र में, तो माँ यशोदा के स्तनों से दूध आता है, कुछ ऐसा रिफ्लेक्स रेफरेंस है। तो ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स का रेफरेंस वहाँ भी है। नेगेटिव स्टिमुलस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई मदर्स जो हैं मिल्क बना हुआ है बट दे आर नॉट एबल टू ब्रेस्ट फेड, और मिल्क रिलीज नहीं हो रहा है, और उसके पीछे जो है कॉज हो सकता है कि लोकल पेन है, या मदर स्ट्रेस में, चिंता में, वरी में है, या कॉन्फिडेंट नहीं, जैसे प्राइमी जो होती हैं फर्स्ट बेबी हुआ है तो उसमें उनको कॉन्फिडेंस नहीं रहता है कि मैं पता नहीं फीड करा पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, डाउट्स होते हैं, तो वहाँ पे भी जो है नेगेटिव स्टिमुलस होता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज नहीं होता है। तो ऑक्सीटोसिन बेसिकली क्या करता है, जो मायोफाइब्रिल्स हैं, मसल्स हैं, जो हमने यहाँ देखे हैं, जिस मसल सेल्स हैं, और मसल सेल्स के अंदर जो है मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स हैं, तो इन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से मिल्क जो है आपके लेक्टिफेरस साइनस में आएगा, जहाँ बेबी जो है प्रेस करेगा अपने पैलेट और टंग के बीच में इन लैक्टोफेरस साइनसेस को, तब रिलीज होगा। तो ये मसल सेल्स तब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जब ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, और ऑक्सीटोसिन रिलीज नहीं होगा तो मिल्क इवन प्रोड्यूस होने के बावजूद भी जो है रिलीज नहीं हो पाएगा। और वो तो हमने बात कर ली कि ऑक्सीटोसिन इवोल्यूशन में हेल्प करता है। दिस इज़ हाउ द ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स इज देयर इज सेंसरी इम्पल्सिस फ्रॉम निपल, and there is positive the stimuluses of sight of the baby, sound of the baby, voice, good feeling. Even positive feeling can also increase the oxytocin secretion, और जो पॉजिटिव स्टिमुलस मिलता है, जबकि हिंडर जो रिफ्लेक्स हिंडर करता है रिफ्लेक्स को, एंग्जाइटी, पेन, डाउट्स, ये सारी चीज़ें।
तो दिस वाज ऑल अबाउट फर्स्ट पार्ट ऑफ इन्फेंट फीडिंग। तो इसमें हमने बेसिकली बात करी कि फीडिंग कब शुरू करनी चाहिए, देन ब्रेस्ट मिल्क के एडवांटेजेस बेनिफिट्स क्या हैं, न्यूट्रिटिव वैल्यू है उसकी, इम्यूनोलॉजिकल है, सीएनएस मैच्योरेशन में, देयर आर सो मैनी बेनिफिट्स। हम जो है 30-40 मिनट में सारी चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकते हैं। ब्रेस्ट मिल्क पे ही डिस्कस करना हो तो 4-6 घंटे जो है चाहिए हमको। उसके कंपोनेंट्स, एक एक कंपोनेंट्स को अलग अलग करके उनके बेनिफिट्स को काउंट करना, बट बहुत जल्दी जल्दी में, बहुत हरिड मैनर में हमने क्लास जो है ख़त्म करनी चाहिए, क्योंकि अपलोड करने में भी दिक्कत होती है। तो टुडे हमने ये चीज़ें डिस्कस की। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू फीड, ब्रेस्ट फीडिंग की टेक्निक्स क्या होनी चाहिए, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उनको कैसे हमने सॉल्व करना है, या फिर कॉम्प्लीमेंट्री फीड हमने कब शुरू करना है, किस फॉर्म में शुरू करना है, वो चीज़ें हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो अभी भी जो है फीडबैक क्वेरीज बहुत कम आ रही हैं। एक दो लड़के ही जो हैं एक्टिवली कुछ पूछते रहते हैं, नहीं तो पूरी क्लास शांत है, तो मतलब आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। पढ़ाई करिए, फीडबैक दीजिए हमको भी और बड़े अधिकारियों को भी जो मांग रहे हैं। तो पढ़ाई कीजिए और क्वेश्चन पूछिए ना, ज़्यादा ज़्यादा क्वेरीज होंगी तभी हमको लगेगा कि आप लोग कुछ पढ़ रहे हैं। ओके, थैंक यू।